السلام علیکم، شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، بچنا اور لڑنا ہے لیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے کورونا سے ڈرنا نہیں، بچنا اور لڑنا ہے۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ 2019 اپنے اختتام پر تھا۔ فضا میں موجود جراثیموں کے جھرمٹ سے ایک جراثیم باقی جراثیموں کو دھکیلتے ہوئے بولا، بھائیو زندگی کا لطف نہیں آ رہا۔ باقی جراثیم یہ سن کر ہنسنے لگے اور ایک جراثیم جس کا نام کانگو وائرس تھا اپنی گردن فخر سے اکڑاتے ہوئے بولا، لطف کیسے آئے، کام کے نہ کاج کے اور دشمن اناج کے، کتنے عرصے سے بیکار پڑے ہو، مجھے دیکھو، کچھ عرصہ پہلے میں نے کیسے جانوروں اور انسانوں کی زندگی میں ادھم مچایا تھا۔ یہ سن کر پہلے والا جراثیم غصے سے لال ہو گیا اور بولا، ارے او کانگو، تم جانتے نہیں میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے 1930 سے میرے آباء و اجداد نے انسانوں اور جانوروں کو کیسے نقصان پہنچایا۔ یہ سنتے ہی کانگو وائرس نے زور کا قہقہا لگایا اور بولا، تو کچھ کرو نا، ہم بھی تو دیکھیں تم کیا کر سکتے ہو۔ جراثیموں کے جھرمٹ میں موجود ہر جراثیم نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، کرونا کرونا، کچھ تو کرونا، کرونا کرونا۔ اس توہین پر پہلے والا جراثیم بھڑک اٹھا اور اس نے کانگو وائرس کی للکار کو قبول کرتے ہوئے کہا، اب میں تم سب کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تم سب جانتے نہیں میرا اور میری برادری کا نام کرونا وائرس ہے اور میں تمام جراثیموں میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر دکھاؤں گا۔ پوری دنیا کے لوگ آنے والے نئے سال 2020 کا جشن منانے میں مصروف ہوں گے اور دیکھنا میں کیسے اس نئے سال 2020 کو پوری دنیا کے لیے تکلیف دہ سال بنا کر آؤں گا۔ یہ کہتے ہی کورونا نے زور کی سیٹی بجا کر اپنی برادری کو آواز لگائی، ساتھیو چلو آگے بڑھو، ہمیں اپنے مشن پر جانا ہے۔ کورونا وائرس اور اس کی برادری نے تیزی سے اپنی پرواز بھری اور فضا میں اپنی نظریں گاڑے گھومنے لگے۔ وہ بہت تیزی سے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں پہنچ کر اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ کورونا وائرس گھومتے گھماتے ملک چین کے شہر ووہان پہنچ گیا۔ کورونا کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ چھا گئی اور بولا، بس ساتھیو یہیں اپنا پڑاؤ ڈال دو اور سب سے زیادہ بوڑھوں اور بچوں پر حملہ کر دو، کیونکہ بچوں اور بوڑھوں میں قوت مدافعت جوان لوگوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اور ہاں یاد رہے، سب سے پہلے انسانوں کے ہاتھوں میں بس جاؤ اور ہاتھوں کے ذریعے منہ میں اور پھر چھینک اور کھانسی کے راستے ایک انسان سے دوسرے انسان پر چھلانگ لگا دو۔ یہ فیصلہ سناتے ہی کورونا وائرس ووہان کے ایک باشندے کے قریب جا کر مسکرانے لگا۔ وہ چینی باشندہ ہاتھ دھوئے بنا کھانے میں مگن ہو گیا۔ اچانک اسے زور سے چھینک آئی۔ چھینکتے ہوئے منہ پر ہاتھ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے پانی کے کچھ ذرات اس کے کھانے پر گر پڑے اور وہ پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس چینی باشندے کو جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر کورونا وائرس نے زور کا قہقہا لگایا اور بولا، ہو گیا میرا پہلا شکار۔ وہ چینی باشندہ کورونا وائرس کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، گلا بھی درد کرنے لگا اور بخار بھی تیز ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں یکے بعد دیگرے ایسی علامات کے کئی مریض منظر عام پر آنے لگے۔ کورونا وائرس جب کسی کو مصافحہ کرتے دیکھتا تو بہت خوش ہوتا، کیونکہ اس طرح کورونا کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہونا آسان ہو جاتا۔ لوگ جیسے ہی اپنے آلودہ ہاتھ اپنے چہرے پر لگاتے یا آلودہ ہاتھوں سے کچھ کھاتے تو کورونا وائرس کو اپنا اثر دکھانے کا موقع مل جاتا۔ چین کے ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ خطرناک وبا کیسے پھیلی۔ چین کے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مریض تکلیف سے تڑپ رہے تھے اور یہ دیکھ کر کورونا وائرس خوشی سے ناچ رہا تھا۔ بروقت مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے متاثرہ مریض مرنے لگے، کیونکہ ابھی تک اس وبا کے علاج کے لیے کوئی خاص دوائی یا ویکسین دریافت نہیں ہو سکی تھی۔ متاثرہ مریضوں کو الگ تھلگ رکھا جانے لگا اور ایسی جگہ کو قرنطینہ کا نام دیا گیا۔ سارے چین میں خوف و ہراس نے قدم جما لیے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے سے بھی ڈرنے لگے، کیونکہ یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی تھی۔ پوری دنیا میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ چین میں ایک کورونا نامی وائرس پھیل چکا ہے۔ اپنی بڑھتی شہرت کو دیکھ کر کورونا بہت خوش تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ چین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیمار ہو چکے تھے اور ہزاروں افراد اس خطرناک وائرس کی وجہ سے مر چکے تھے۔ چین کے ڈاکٹرز اور ماہرین نے اس وائرس کی تحقیق کے بعد ہدایات جاری کر دیں کہ اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے حفظان صحت کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
चेहरे पर मास्क पहना जाए और किसी भी चीज़ को छूने के बाद हाथों को लाजमी धोया जाए। हत्ता कि चीनी डॉक्टर्स ने खुद को भी इस वबा से महफूज रखने के लिए सर से पांव तक हिफाजती लिबास से ढांप लिया। पूरी कौम ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का अज़म कर लिया। सारे मुल्क में हर इंसान मास्क से अपने मुंह को ढांपे नजर आने लगा। अवाम पर घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इन एहतियातों पर अमल दरामद होते ही चीन में सूरत हाल बेहतर होने लगी। कई मरीज़ ठीक होने लगे और नए मरीज़ों की तादाद में भी कमी वाक़या होने लगी। ये देखकर कोरोना वायरस और इसका ग्रोह झटपटा गए और गुस्से में चीनी बाशिंदों और माहिरीन को बुरा भला कहने लगे। अरे पागल लोगों, ये क्या कर रहे हो? अरे हाथ क्यों धो रहे हो? और ये मास्क, उफ, इससे तो हमारा दम घुटता है और हमारा एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होना मुश्किल हो जाता है। अरे मैं कहता हूँ उतारो ये मास्क। जब कोरोना वायरस ने चीन में हिफाजती इक़दामात की वजह से मरीज़ों को ठीक होते और अपने कोरोना साथियों को मरते देखा तो इसने सोचा कि क्यों ना दूसरे ममालिक में भी फैलकर लोगों को बीमार किया जाए। कोरोना ने ज़ोर से अंगड़ाई ली और अपने ग्रोह से मुखातिब हुआ। कोरोना साथियों, यहाँ चीन में तो हमने अपना काम कर दिखाया, मगर अब यहाँ ज़्यादा देर तक रहना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं। अब अपने नाम और काम को मज़ीद यादगार बनाने का वक्त आ चुका है, इसलिए हमें दूसरे ममालिक की जानिब रुख करना चाहिए। ये कहकर कोरोना और इसका ग्रोह इटली, ईरान, कोरिया, इंडिया, जर्मनी, तुर्की, अमरीका, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया जैसे कई ममालिक में फैल गया और तेज़ी से लोगों को मुतासर करने में कामयाब होने लगा और दुनिया आलमी बहरान का शिकार हो गई। इस सारी सूरत हाल को देखते ही आलमी इदारा सेहत ने भी 20 सेकंड्स तक हाथों को धोने का ख़ास तरीका मुतारिफ करवाया और चेहरे को छूने से ग्रेज़ करने का मशवरा दिया ताकि कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सके। इन तदाबीर पर सारी दुनिया में अमल दरामद शुरू होने लगा। ये देखकर कोरोना वायरस गुस्से में आग बगोला हो गया, क्योंकि हाथ धोने से कोरोना वायरस को हमला करने में दिक्कत पेश आ रही थी। वह जिस इंसान को हाथ धोते देखता खौफ से चिल्लाने लगता, अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? हाथ मत धो। कोरोना वायरस ने अपने मकसद की कामयाबी के लिए अपने मिशन को तेज़ कर दिया और तकरीबन 184 ममालिक में फैल गया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। कोरोना ने हर तरफ तबाही मचा दी। कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में उदासी और खौफ व हरास के फैलने की वजह से लोगों की ज़िंदगियां मफलूज होकर रह गईं। मगर फिर हर मुल्क, हर कौम ने इस वायरस से जंग की तैयारी कर ली कि कोरोना से डरना नहीं, बचना और लड़ना है। बेशतर ममालिक ने इस ख़तरनाक वायरस से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया। बच्चे अपने घरों में महफूज हो गए। ऐलान सुनते ही कोरोना चिल्ला उठा, अरे ये क्या कर दिया? अरे बच्चे अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम बच्चों पर कैसे हमला करेंगे? कोरोना वायरस अभी अपने साथियों के साथ मिलकर अगले मंसूबे तैयार करते हुए मुखातिब हुआ। कोरोना साथियों, बेशक हम सब ने बहुत बड़ा मौक़ा सर कर लिया, मगर हमारे बहुत से कोरोना साथी भी मारे गए हैं। हर मुल्क में मुतासर मरीजों को, अरे वो क्या कहते हैं, करंटीना में रखा हुआ है। मरीजों के घर वालों को इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हमारे फैलने में दुश्वारी हो सकती है और बच्चों को भी छुट्टियां देकर हमसे बचा लिया गया। हमारे मिशन को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कि कोरोना वायरस अपनी तकरीर जारी रखता, एक कोरोना वायरस तेज़ी से भागते हुए आया और हाँफता हुआ बोला, कोरोना भाई, बहुत बुरी खबर है। हर मुल्क ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर ली हैं। हर मुल्क ने अपनी कौम को हिफाजती तदाबीर जारी कर दी हैं। अभी सड़कों पर लगे बड़े बड़े पोस्टर्स और टीवी पर हदायत देखकर आ रहा हूँ, जिसमें बताया गया है कि लोग आपस में हाथ मिलाए बगैर और बगलगीर हुए बगैर एक दूसरे से सलाम करें, खांसते और छींकते हुए मुंह को ढांपें, आलूदा हाथों से अपने आँखों और नाक को छूने से ग्रेज़ करें, हाथों को सैनिटाइज़र और हैंड वॉश से साफ़ करें। कोरोना से मुतासर अफराद और मुतासर अफराद की देखभाल करने वाले अफराद मास्क का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद टिश्यू को डस्टबिन में लाजमी फेंकें। लोग ग्रुप की सूरत में कहीं भी इकट्ठे ना हों। एक दूसरे से तकरीबन 1 मीटर का फासला रखें। और सिर्फ यही नहीं, कोरोना भैया, बूढ़े, नौजवान और बच्चे भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को हिफाजती इक़दामात की तलकीन कर रहे हैं। एक छोटा सा कोरोना वायरस भी हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला, कोरोना भैया, और ये मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, तो इस वजह से भी हमसे महफूज रहते हैं, और तो और हमसे बचाव की दुआएं भी मांगते हैं। ये सब सुनने की देर थी कि कोरोना वायरस फिर से चिल्ला उठा,
अरे वाह, ये इंसान तो हमें मारने पर तुला है। अभी तो हमारा मिशन मुकम्मल भी नहीं हुआ। साथियों, इंसानों पर हमले मज़ीद तेज़ कर दो। हुक्म मिलते ही कोरोना वायरस अपने नए शिकार की तलाश के लिए रवाना हो गए। शरह अमवात और मुतासर अफराद में तेज़ी से इजाफा होने लगा। सारी दुनिया में जगह जगह मरीज तड़प उठे और लोगों को तड़पता देखकर कोरोना वायरस खुशी से जश्न मना रहा था। इस गंभीर सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ने लॉकडाउन शुरू करने का फैसला कर लिया था और फ़ौरन इस हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। स्टे होम स्टे सेफ के नाम से मिशन शुरू कर दिया गया और लोगों को घरों तक महदूद रहने का हुक्म दिया गया। लोगों को घरों तक महदूद करने का यह फ़ायदा हुआ, सड़कों, रेलवे स्टेशन, अवामी मकामात पर क्लोरीन और जरासीम का स्प्रे करने का इंतज़ाम किया जाने लगा। कोरोना वायरस को घरों में दाखिल होने का मौका नहीं मिल रहा, जिससे कोरोना वायरस अपना सर पकड़ कर बैठ गया, क्योंकि इसकी ज़िंदगी को खतरा लाहक होना शुरू हो गया। कोरोना वायरस एक बार फिर चीख चीख कर इंसान को बुरा भला कहने लगा। अरे पागल लोगों, दरवाज़ा खोलो, घरों में क्यों बैठ गए? अरे बाहर निकलो। जिन लोगों की बवजह ड्यूटी या अहम वजूहात की बिना पर घरों से बाहर निकलना पड़ता, वो भी एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे से फासले पर रहते। ये बात भी कोरोना को हजम नहीं हो रही थी और ये देखकर भी वो चिल्लाने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो? करीब करीब खड़े होना है। कोरोना अपना सर पकड़कर इधर से उधर नए शिकार ढूंढता फिर रहा है। उधर चीनी कौम 76 रोज़ के लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो गई, मगर अभी भी बहुत से ममालिक कोरोना वायरस के साथ अपनी जंग लड़ रहे हैं और सब ममालिक एहतियाती और हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा रहकर कोरोना वायरस को इस दुनिया से भगाने के अज़म को पूरा करने में मसरूफ़ हैं। लिहाजा अब कोरोना वायरस को अपनी शिकस्त होती नज़र आ रही है और कोरोना वायरस ने अपने साथियों से कह दिया है कि अब दुनिया से रफू चक्कर होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये इंसान तो बहुत ताकतवर हैं और इंसानों ने अब अपनी हिकमत अमली से हम पर काबू पाने का इरादा कर लिया है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अब वापसी की जानिब रुख करते जाओ। प्यारे साथियों, कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता सिर्फ एहतियात है। ये बात दुरुस्त है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में बहुत ही तबाही मचाई। लाखों मरीज तकलीफ़ के भंवर में तड़पे और हज़ारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, मगर ये भी सच है कि सारी आलमी बरादरी मिलकर एहतियाती और हिफाजती तदाबीर पर अमल करके इस कोरोना जैसे ख़तरनाक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब भी हो रही है। प्यारे साथियों, इस आलमी बहरान ने सारी आलमी बरादरी को एक सबक भी दिया है कि हालात कितने भी ख़राब हों, मिलकर मुकाबला करने से मुश्किल वक्त को शिकस्त दी जा सकती है। हालात कितने भी भयानक क्यों ना हों, डरने और घबराने के बजाय हिकमत अमली से डट कर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला लाजिम है। इसलिए कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। ख़त्म शुद।